اسی کے ساتھ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ ہدا جو کہ روپانی فاؤنڈیشن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ رفیق محمد صاحب جو کہ روپانی فاؤنڈیشن سے. السلام علیکم. سارہ سے کوشچن کریں گے. سارہ ECD پہ ہم بات کریں گے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پر. ECD کا مجھے یہ بتائیں کہ کانسیپٹ جب آپ لے کر چلتے ہیں, کوشچنز میرے پاس ہیں لیکن میں اپنے دل سے ایک دو کوشچنز کرنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ آپ ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ آپ جب ٹیچر ایک مقام پر آپ کسی کو ٹیچر کہتے ہیں تو وہ پھر ہر چیز پر آنسر دینے کا ایلیجبل ہوتا ہے, تو وہی وہ ٹیچر کہلاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ارلی ہوڈ چائلڈ ایجوکیشن جو ہے, یعنی بہت یہ چھوٹی ایج کے بچوں کو آپ تربیت دیتے ہیں جو کہ 3 سال کے انڈر ہوتے ہیں, ان کی ماؤں کو بھی تربیت دی جاتی ہے, ایون دو پریگننٹ ویمنس کو بھی آپ لوگ تربیت دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ از دس ایزی ٹاسک اور یہ مشکل ہو جاتا ہے؟ مشکل تو بالکل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خود بھی آج کل بہت زیادہ ایگر ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایک اچھی نشو نما کر سکیں, اور وہ خود سے ہمارے پاس چل کے آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے ایک بہترین ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. تو جس میں ہم جو ہے وہ ان کو ٹریننگز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ECD کا مطلب یہی ہے کہ بچوں کی کیئر اینڈ نرچرنگ کے اوپر کام کیا جائے, جس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ٹیچر سے زیادہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے, اور ماں باپ ہی جو ہے وہ بچوں کو ایک بہترین تربیت دینے میں جو ہے وہ اپنا بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ایک یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی ٹرین کر پا رہے ہیں ان چیزوں میں. تو آپ جب ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہیں تو وہ لوگ خود اپنی کیسے آپ تک پہنچ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھ آنا ہے؟ اچھا, کچھ ہمارے جو ہے وہ اپنے آبزرویشنز ہوتی ہے جس میں ہم ٹیچرز کو آبزرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ورلڈ جس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے, تو ہماری جو ہے وہ ٹیچنگ سٹینڈرڈز بھی اس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں, کوالٹی میں ایک انکریز آ رہا ہے, اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں ایک انکریز آ رہا ہے, اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو بہت الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے. بالکل, اور آج کل کا بچہ آپ سے زیادہ ایڈوانس ہے. وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ اپنا کس طرح سے وہ اپنا آئی پیڈ یا فون یوز کر کے آپ کو دکھا دے گا کہ دیکھیں مما آج میں نے اس میں یہ کیا یہ کیا ہے. تو اس طرح ٹیچرز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم کس طرح سے ان ماڈرن چیزوں کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے لیسن پلانس پریپیئر کریں, تو ہم اس میں جو ہے وہ ان کو گائیڈنس وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک بات سارہ میں اور پوچھوں گا آپ سے کہ جب آپ بینگ اے ٹیچر ہم جب بات کرتے ہیں, اچھا کافی جگہ پہ یہ لیکنگز دیکھی گئی ہیں کہ آپ بچوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے یا ان کو صحیح طریقے سے بتا نہیں سکتے, تو ایک آنسر آتا ہے اچھا ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی. تو مطلب ایزی ہوتا ہے یہ سمجھانا, یا آپ کے اوپر جب آپ ٹیچر بنتے ہیں تو بنتے ساتھ ہی چاہے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آپ تمام ذمہ داریاں آپ پر پڑ جاتی ہیں؟ دیکھیں, جب آپ ایک ٹیچر بن جاتے تو ایک ٹیچر کا عہدہ بچوں کا ایک روحانی ماں باپ جو ہے وہ ہم ٹیچر کو ایک عہدہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ٹیچر بنتے ہیں تو آپ کو خود ہی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ آپ کو ماننا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں میری اولادیں ہیں, واقعی میں یہ میرے بچے ہیں, اور میں کس طرح سے اپنے بچوں کی چاہوں گی کہ میں ان کی ایک بہترین تربیت کر سکوں. تو اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی چاہوں گی کہ میں بہترین انہیں جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ ان کی تربیت کر سکوں. استاد کا درجہ ہوتا تو روحانی ماں باپ کا ہی ہے نا, تو وہ جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو چاہے ان کی شادی ہو یا نہ ہو وہ بچوں کو ماں باپ والا ہی پیار دیتے ہیں. یہ بتائیں لیڈیز ہیں یا جینٹس بھی اس طرف آتے ہیں یا صرف لیڈیز کا ہے؟ ٹیچرز بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ہمارا میل اسٹاف بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ بچوں کے فادرز بہت زیادہ آج کل انیشیٹ کر رہے کہ وہ بھی ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیشنز وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو پیرنٹنگ کا سیشن دیا تھا, تو اس میں جو ابھی نیولی جو پیرنٹس بننے والے ہیں ان کو ہم نے یہ سیشن دیا تھا, جو پریگننٹ وومنس تھی ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈز بھی تھے. پیرنٹس ٹو بی کو آپ نے کیا تھا, زبردست. میں سارہ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں روپانی فاؤنڈیشن کی طرف سے. تو سارہ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے نا وہ آج کل کس حد تک ضروری ہے, اور پہلے تو اتنی ٹریننگ اسینشل بھی نہیں ہوتی تھی, ٹیچرز آ جاتی تھیں, لیکن چھوٹے بچوں کے لیے تو خاص طور سے بہت سوچنا پڑتا ہے. اور یہ بتائیں ٹیچرز کتنا کوپریٹ کرتی ہیں, کس حد تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم ٹریڈیشنل سسٹم کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ کریکولم ہوتا تھا, جہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر ہی سارے رولز جو ہے وہ پلے کری ہوتی تھی. ٹیچر ہی پڑھا رہی ہے, بچہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے گھر چلا گیا. لیکن اب جو ہے وہ ہم چائلڈ سینٹرڈ کریکولم کی طرف موو کر گئے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر ورک کر رہی ہوتی ہے. اور روپانی فاؤنڈیشن میں تو صرف فیسیلیٹیٹرز نہیں بلکہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ بچے کے انوالو ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, تو اس سے جو ہے وہ بچہ کافی زیادہ موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کی ٹریننگ اسی لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں بچوں کی
हिडन स्किल्स होती हैं, हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने इनबॉर्न जो है वो स्किल्स रखी होती हैं, तो टीचर्स का काम है कि उन स्किल्स को बाहर निकालना। और वो किस तरह से बाहर निकालेंगी आजकल के इतने एडवांसमेंट दौर में, जहाँ पे बच्चा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो इन चीज़ों पे जो है वो टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि रूपानी फाउंडेशन का जितना भी वो काम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। जैसे जैसे सारा बात करेंगी वैसे वैसे आप चीज़ें देखते चले जाएंगे अपनी स्क्रीन पर भी। अच्छा जी, आपसे भी सवाल है क्योंकि आप काफ़ी देर से हैं और सवाल करना ज़रूरी है क्योंकि रूपानी फाउंडेशन इटसेल्फ हमारे स्पॉन्सर्स में भी शामिल है जी। और मुझे ये बताएं कि आप जब ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं तो आप भी बैठते हैं बीच में? कभी कभार हम बैठते हैं, कभी कभार हमारा एडमिन एंड फाइनेंस है, लेकिन वो कभी होता है कि ऐसा कि हम क्योंकि जब आप लॉयल होते हैं अपने काम के साथ, अपने इदारे के साथ, तो काफी दफा लोग चेक करने के लिए भी बैठते हैं कि आया टॉपिक कुछ डिफरेंट हुआ, लोगों को कुछ कभी ऐसा किया आप लोगों ने। क्योंकि मुझे फरहान भाई ये कहते हैं कि हम अपने टीचर्स और अपने वर्कर्स के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि इधर जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो तो वो डिलीवर कर रहे हैं, मसला नहीं है। क्योंकि रूपानी फाउंडेशन का हर मेंबर इटसेल्फ एक जीनियस है, लेकिन क्या वो इतना जीनियस है कि जो वो कहना चाह रहा है वो दूसरा समझ रहा है या नहीं समझ रहा? तो इसमें कभी आपने शिरकत की? कभी कभार की है, कभी कभार की है। अच्छा, थोड़ी सी अंग्रेजी मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जिससे आपने बताया कि आप एडमिन फाइनेंस हैं, तो आपको कैसे, कितना लगता है कि हद तक के लोग जो है वो डोनेट करते हैं, आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं? आपको किस हद तक पब्लिक इन्वॉल्व नजर आती है? इन्वॉल्वमेंट तो बहुत है हमारी, डोनेशन वगैरह हेल्प हो जाती है हमें। इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, नेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल ज्यादा लोग वो देखते इंटरनेशनल हैं क्योंकि हमारे जो सर हैं रूपानी फाउंडेशन, वो मोस्टली बाहर से ही डोनेशन हमारे आते हैं। ठीक है, और हेल्प होती है मोस्टली। ठीक है, ठीक है। अब आपकी तरफ आते हैं कि जो लोगों को ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं तो लोगों से कैसे एक्सेस होता है? इज दिस इजियर टू एक्सेस द पीपल अराउंड, और या आप लोग कोई ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, या कहीं अपने पेज पर ब्रांडिंग होती है, या आपकी डेट्स फिक्स होती हैं कि इस पर टीचिंग की चीजें चलनी, मतलब क्लासेस होनी? सबसे पहले तो ये कि अज्यूम तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप खुद जाके किसी स्कूल में जाके आप ऑब्जर्व ना करो। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो टीचर का जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो उसके स्टूडेंट में ऑलरेडी नजर आ रहा होता है, तो उसी से आपको असेस हो जाता है कि हाँ टीचर्स ने जो है या हमें इन फ्यूचर जो है वो इन चीज़ों की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और विद इन अ मंथ या फिर जिस तरह से हम उसको प्लान कर रहे होते हैं, तो फिर हम एक गोल को जो है वो टारगेट करके उसके ऊपर ही, यानी हमारा टारगेट एक होता है कि पहले एक स्किल के ऊपर काम किया जाए। और रूपानी फाउंडेशन तो मोस्टली अंडर प्रिविलेज और रूरल एरियाज़ के लोगों पे काम कर रहा होता है। और एक अफ्रीकन सेइंग भी है कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो सिर्फ टीचर की जो है वो नीड नहीं होती है, एक पूरी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों में। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ट्रेनिंग्स को प्लान किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग ट्रेनिंग्स होती हैं। क्लासरूम में वैसे बच्चों के साथ किस किस्म की डिफिकल्टीज का सामना ज्यादा करना पड़ता है? देखिए, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये होती है क्योंकि बच्चे जो हमारे पास आ रहे होते हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो सबसे पहला गैप जो हमारा आ जाता है वो कम्युनिकेशन बैरियर आता है। तो अगर टीचर्स ऑलरेडी वेल ट्रेंड होंगी तो उन्हें पता होगा कि हमें जो है वो बच्चे के लेवल पे आके जो है वो किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है। अच्छा, आप जो रूपानी फाउंडेशन है वो कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है? अच्छा, रूपानी फाउंडेशन का जो है वो मेनली काम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में है, जिसमें हमारी नर्चरिंग भी शामिल होती है बच्चे की। तो उस हिसाब से जो है वो टीचर्स के लिए जो है वो हम मॉन्टेसरी अप्रोच एंड हाई स्कोप अप्रोच, इस तरह के डिफरेंट, इस तरह आपके जो है वो पेरेंट्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिव केयर के ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हम लोग अरेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है। और ये किस तरह आप जानते हैं कि हर किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला बंदा या किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हासिल कर सकता है? वैसे जो हमारी जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज होते हैं, यानी बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में जो है वो ट्रेनिंग्स हम लोग करवा रहे होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स जो है जब हम रूरल एरियाज़ में अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो ऑन साइट ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो वी कीप इन माइंड के बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज अमाउंट में जो है वो उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाए। इफ़ दे आर अनएबल टू पे इट तो फिर उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट फंडिंग्स होती हैं, जिसमें हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे आप कराची में बच्चों की कोई क्लास कर रहे हैं उसमें आप लोग फीस सही ले लेते हैं या फिर सबके लिए इवन है कि जहाँ भी जाएंगे? ये चीज़ सबके लिए इवन है, क्योंकि देखिए
प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना वो एक कह लें कि आप लर्निंग भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, वो कभी भी आप जो है वो जिंदगी में एक ऐसा स्टॉप नहीं आता जहाँ पे आपकी लर्निंग रुक जाए। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी और ट्रेनिंग्स भी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई उसे इजीली जो है ना वो असेस कर सके, ये ना हो कि हम जो है वो फेवरिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मसला ये आता है कि फेवरिज्म में तो फिर चीजें चलती भी नहीं है ना। नाजरीन, और आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन नूर सहर, और हमारे साथ बहुत प्यारे से मेहमान मौजूद है रूपानी फाउंडेशंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सारा हुदा, बड़ा प्यारा सा नाम है। तो सारा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि रूमानी फाउंडेशन जो है वो किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है कि बच्चों, खासतौर से इतने छोटे बच्चों को लेके असल में लोग घर में मतलब माहौल ही नहीं होता कि 1 से 3 साल के बच्चों को, तो आप लोग कैसे उनको वो करते हैं कि भाई आप इतने छोटे बच्चों को लेकर आएँ? जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि कोई सेमिनार्स होते हैं, या लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुँचती है? अच्छा, इसके लिए जो है वो हम स्पेसिफिकली वर्क करते हैं कि हम जो है वो होम विजिट्स कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम घर घर जाके जो है वो एक तो हमारे पास इस तरह से जो है वो एक डेटा भी कलेक्ट हो रहा होता है कि किन बच्चों को कहाँ पे जो है वो फैमिली में कितने बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें किन किन पे जो है वो वर्क करने की जरूरत है। और जब आप घर जाके किसी को खास तौर पे एक इन्विटेशन देते हो और उन्हें मोटिवेट करते हो तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सही इन चीज़ों में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रूपानी फाउंडेशन जो है वो अपनी मदद आपके तहत ये सेमिनार्स करवाती है, या हुकूमत का आपको जो है वो सपोर्ट है, या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मर्ज है? हमारे जो है वो कोलैब्स हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही होती है। इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड में भी हमारे साथ जो है वो आगा खान एजुकेशन नेटवर्क के साथ भी हमारे काफ़ी सारे कोलैब हो रहे होते हैं। जैसे रिसेंटली हमने जो है वो डेंटल कैंप अरेंज करवाना था। तो उसके पास हमारे पास एक स्पेसिफिकली जैसे नू डेंटल क्लिनिक था, तो उन्होंने जो है वो हमारे साथ कोलैब करके जो है वो डेंटल कैंप जो है वो अरेंज करवाया। इस तरीके से डिफरेंट कोलैब्स हो रहे होते हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ कराची अगर आप बात करें इस्लामाबाद वगैरह की, तो वहाँ पे हम यूनिसेफ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। जबरदस्त। और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर टीचर्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखें, सबसे पहला मसला तो ये आ जाता है कि हमारे क्लासरूम्स इतने छोटे होते हैं, एक टीचर होती है और 30-40 बच्चे जो है वो उसी टीचर के जिम्मे होते हैं, जिसमें टीचर भी खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और देखिए, टीचर का जो है वो गोल ये होता है कि मैं हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकूं, जो कि वो चाह भी रही होती है कि मैं दूं। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा हम रख रहे होते हैं तो उस वजह से एक जो है वो टीचर बेचारी वो किस किस को जो है वो हैंडल करेगी, और इस तरह से बच्चे भी काफ़ी जो है वो पीछे रह जाते हैं। और पेरेंट्स भी काफी बोलते होंगे कि हमारा बच्चा अभी ये नहीं सीख रहा, उसको भी सामना करना होता होगा, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है। कोई जल्दी लर्न करता है, कोई देर में, तो ये भी मसाइल होते होंगे। इनिशियली जो है वो एक ECD का एनवायरनमेंट, या एक आप कह लें कि अर्ली चाइल्डहुड जो क्लासरूम हम लोग प्ले ग्रुप जिसे हम कह रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है ना वो 8 से 10 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जो एक टीचर है वो हर बच्चे के ऊपर जो है वो एक इंडिविजुअल फोकस कर सके। और इसके लिए जरूरी भी ये होगा कि सारा कि आपका जो बच्चा है वो एकदम से तो पढ़ेगा नहीं, आइंस्टाइन तो है नहीं वो बच्चा, या कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब उसको खेल कर चीजों को, डिफरेंट चीजों को इन्वॉल्व करके फिर ट्रेनिंग देते, तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं या डिफरेंट आराम से आके बैठते और पढ़ के चले जाते हैं? नहीं, बच्चों को जो है वो सबसे पहले आपको एनर्जाइज करना होता है। बच्चे, छोटे बच्चों के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा एनर्जीज होती हैं कि आपको खुद ही उनको टैकल करना होता है। तो सबसे पहले तो फॉरमोस्ट यही होना चाहिए कि हम उन्हें वार्म अप एक्टिविटीज करवाएं, जिसके थ्रू जो है वो उनकी जो एक एक्टिव एनर्जीज हैं वो भी टैकल हो जाए। फिर बच्चा जब काम डाउन हो जाता है तो फिर डिफरेंट एक्टिविटीज में वो जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है और फिर उन चीज़ों से लर्न भी कर रहा होता है। ज़ीशान, मैंने खुद भी छोटे बच्चों को पढ़ाया है, इतना मुश्किल होता है। एक तो उनको कंपोज करके रखना होता है, उनकी डायरीज खुद लिखनी होती हैं, होमवर्क लिखना होता है, क्लास वर्क। मतलब मैंने बहुत जल्दी भाग गई थी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में थी मैं, उसके बाद जब मुझे क्लास दी गई मैंने कहा नहीं भाई मेरे बस का काम नहीं है। तो बड़ा ही आपको सलूट है, आप लोग छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर आयशा रूपानी फाउंडेशन ही ये आइडिया लेकर आया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ये होता था, असल में मैं अगर सिंपल लफ्जों में कहूँ अशरफ भाई, कि हमारे यहाँ तो वो कूची कुई कर रहे होते हैं 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को, कि अभी तो ये छोटा है, ये कैसे पढ़ेगा। जी जी बिल्कुल अशरफ भाई। हमारे यहाँ कतरे पहले जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हमारे यहाँ कम्युनिकेशन, वो जो बच्चों में हम शुरू से जो तरबियत होती थी ना, माँ की, बाप की, अपने बुजुर्गों की, नानी नाना, दादा दादी, वो बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती थी। अब ये जो कम्युनिकेशन जो आपका ये जो है ना, ये आपका सोशल मीडिया, उस सबको उसने अपनी अपनी दुनिया में सुकेड़ लिया है।
वो बच्चा पास बैठा हुआ, आप उससे बात ही नहीं कर बिल्कुल रहे, उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, अच्छे बुरे की फोन पे तमीज ही डाल नहीं दे दिया। रहे, अब वो फोन पे डाल दिया आपने। पहले का बच्चा होता था रात को अपनी माँ को 5 कलमे सुनाता था, उसको सारी आयतें याद होती थी, उसको अच्छे बुरे का बताया जाता था, उससे सारे दिन की बातें पूछी जाती थी कि बेटा दिन में आपने क्या किया, उसको उठना बैठना चलना फिरना, वो माँ बाप इंसाइक्लोपीडिया होते थे बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल के। ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ सारी चीजें जो है ना, वो क्या करता है बच्चे को, आप 2 साल का बच्चा है, आपने मोबाइल दे दिया आपने, अब ये जो मेहनत सारी जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, वो उस टीचर पे डाल देते हैं। मैं खुद स्कूल से मेरा है, तो वो होता क्या है कि वो आइडियलिज्म में बात यही आती है कि जी हम फीस दे रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की है। बिल्कुल। अच्छा, वो टीचर की है, टीचर अपनी सारी फैंटेसियों, अपनी सारी जरूरत के तहत बेचारी वो कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कहीं वो भी बेचारी मजबूर होती हैं, फाइनेंशियल मजबूरियां होती हैं, या स्कूल की अपनी फैसिलिटीज, जैसे आपने कहा कि वो स्कूल छोटे बड़े, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ की है, जो हमारी यहाँ ये कदरें कम पहली होती जा दरगाह रही माँ हैं। होती बहुत जबरदस्त मामले होते थे। आप और हम देखें इस जगह पे पहुंचे हैं तो कोई कदर, कोई इज्जत, कोई रेस्पेक्ट तो बनी है ना आपकी, ऐसे तो नहीं हुआ आप इस जगह पे पहुंचने में। इक़दार हैं आपकी, टीचर्स की रेस्पेक्ट होती थी, बड़ों का अदब होता था। अब हम देखते हैं कि फ्रेंडली माहौल में वो अदब भी गया और रेस्पेक्ट भी गई, और सवाल जवाब में बदतमीजी भी आ गई, एग्रेशन भी आ गई। बिल्कुल यही चीज होती है अशरफ भाई। पहले की भी माँ बाप एक कहते हैं ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की भी वालदा स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा, इसी तरीके से आपकी भी वालदा स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। आजकल मुझे नहीं माँ बाप का समझ आता है, माँ बाप जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, कि बच्चे को अगर आप गुस्से में कोई बात करते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करेगा, वो क्यों रिएक्ट करेगा? अच्छा, मैं आपको देखें, ये जो चीजें आप कह रहे हैं ना, मैं आपको सबसे बड़ा मसला क्या है बताएं, इजी वे, कि आप देखते हैं ना बच्चा आपसे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप कंफर्टेबल होते हैं कि उसको चाहिए क्या, आप उसको फौरन दे देते हैं। जब आप दे देते हैं तो उसका हर्ष बढ़ा रहे होते हैं, उसका तवक्कल, उसका सब्र, सब कुछ वो खो देता है। 10 खिलौने होंगे और मेरे पास 1 खिलौना पड़ा है मेरे बच्चे के पास, तो उसकी 11वें खिलौने पे नजर होगी, क्योंकि शुरू से आपने उसको लगा दिया गैर शोरी तौर पे। अब वो जो बुराइयां हैं ना, वो आस्ते आस्ते वो बढ़ती जा रही हैं। जब बड़ा होता है तो उसकी फैंटेसियां, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपके मेरे खर्चे क्या होते थे, आप मुझे बताएं, आपकी हमारे ड्रेसेस क्या होते थे? आप देखें, ऐसा नहीं होता था कि बड़े घर का बेटा है तो वो जो है बहुत सारे मामलात में रहेगा। वो एतदाल, वो सबर, वो चीजें हम उन बच्चों में देते थे कि इज्जत नफ्स वाली जो बात यहाँ पे भी आती है कि बच्चों को बताया जाता था कि बेटा ये जो खाना है ना आपने खाना है, नखरे नहीं करने, जो पका वही खाना है। ऐसा ही है। अच्छा, अभी आपके यहाँ सब्जी आपके यहाँ नहीं बनती है तो लोग खाते नहीं है। अच्छा, आप आ गए फास्ट फूड पे, रात के 2 बजे आपको खाना खाना है तो आपका बच्चा मोबाइल पे कर देगा, वो आ जाएगा आपके पास और वो खाना मिल जाएगा उसको, इतना इजी है। अच्छा, आप बड़े लाड से कहते हैं कि मेरा बच्चा ये फलाना फूड खा रहा है, फलानी चीज खा रहा है, आपको पता ही नहीं कि उसके असरात क्या है। ऐसा हमारे जमाने में जैसे हम लोग 80s के हैं ना, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब हम छोटे थे तो वालिदैन ने बड़ी सख्त नजर रखी और हम उसी माहौल में पले बढ़े। और आपने कहा कि रबर पेंसिल ही बड़ी आ जाती थी, बड़ी खुशी होती थी कि कलर पेंसिल मिल गई है, और सब्जी खानी है तो जूते मार के भी सब्जी खानी है। एक चीज खराब होती थी तो उसकी एक्सप्लेनेशन होती थी, अब आप 10 चीजें खराब कर दो तो आपको पूछने वाला है। तो हमारे माजरत के साथ मैं अपना दुखड़ा बता रही हूँ कि अब जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं ना, तो अब हम उनकी नजर देखते हैं, मतलब हमारे तो नजर रखने की वक्त ही नहीं आया। पहले वालिदैन की नजर थी, अब बच्चों की हम पे नजर है, हमारे तो कोई दौर ही नहीं आया 80s वाले लोगों का। असल में हमने वक्त के साथ जो है ना चीजें अपनी मिसिंग की हैं बहुत सारी। वही बात आ जाती है, जैसे आपने कहा कि देखें वो तरबियत जो थी ना हमारे यहाँ बड़ी सख्त, अभी पहले की जो बच्चियां होती थी बड़े सबर शुक्र में देती, अब आप देखें आपको ड्रेसेस कितने चाहिए, आपको वीकली ड्रेसेस चाहिए, आपको चेंज करना है। हमारे वक्त में 6 जोड़े बन जाते थे, 8 जोड़े बन जाते थे बड़े, वहां पूरे साल के लिए, और बड़ा सबर शुक्र से वक्त निकल असल में एक बात नहीं अशरफ, मैं एक बात बोलूंगा कि पहले की माजरत के साथ किसी की दिलाजारी नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है अशरफ भाई कि पहले की माँ आपको लड़ना सिखाती थी कि अगर जो है वो फुप्पो का बेटा, खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, वो अगर कुछ अच्छे ग्रेड्स में जा रहा है
तो वो ये बताती थी कि हम कम में पढ़कर उनके मुकाबले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आजकल तो दौर ऐसा है कि उसने अगर सेव वाला मोबाइल ले लिया तो मेरे बेटे ने क्यों नहीं लिया। बिल्कुल। अच्छा, वो तरबियत साइड पे रहती, सेव वाले मोबाइल पे लग जाते हैं लोग। तो ये मसले मसाइल हमारे पेरेंट्स के हैं, बच्चों के इटसेल्फ। वो कहते हैं ना कैनवस है बच्चा, वो तो जो ड्रॉ करेंगे वही सामने देगा। जी सर, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर ट्रेनिंग्स क्या है, मतलब फ्यूचर क्या प्लान्स है आपके टीचर की ट्रेनिंग के हवाले से पाकिस्तान में? टीचर्स की जो है वो सबसे पहले ये कि उनकी लेसन प्लानिंग के ऊपर जो है वो काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, इस तरह हम भी अपने टीचिंग मेथड्स में ऐसे काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम बच्चों की नॉलेज को असेस कर रहे होते हैं। तो टीचर्स को जो है वो इन चीज़ों की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई सेड कि हम लोग हाई स्कोप अप्रोच के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। हाई स्कोप अप्रोच मीन्स के लर्निंग बाय डूइंग, और जो है लो कॉस्ट मटेरियल्स के ऊपर आप जा रहे होते हो और पेरेंट्स भी आपके उन चीज़ों पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो हाई स्कोप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि आप जो है वो घर में ही जो आपकी चीज़ें जो आप डिस्कार्ड हो जाती हैं, आप उन्हीं को रीयूज़ करके जो है वो एक मटेरियल बना रहे होते हो जिसमें आपका बच्चा जो है वो लर्न कर रहा होता है, जिसके थ्रू। तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास कोई इतने ज़्यादा भी आप एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहे होते। अच्छा, ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग है कि थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए भी कोई नए अगर आप लोग ट्रेनिंग सेशंस बनाए, या अभी नहीं है? प्राइमरी टीचर्स के ऊपर भी हमारा फोकस है। ECD जो है वो आप 0 to 8 इयर्स के बच्चों अच्छा। तक के लिए फोकस कर रहा होता है। बिल्कुल जी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपका ज्वाइन बहुत